السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے ہی چینل سلیکٹ پریکشا اسٹڈی پر آپ لوگوں کا سواگت ہے، استقبال ہے۔ یعنی اردو پیڈاگوجی پہلا چیپٹر، جہاں سے مختصر یعنی جو اہم پوائنٹ ہے اس کو ڈسکشن کریں گے، اس کو حل کریں گے تاکہ آپ کا کنفیوژن دور ہو جائے اور آپ کا نمبر 1 سے 2 نمبر 3 نمبر جو زبان کی آموزش اور حصول یابی میں پوچھا جاتا ہے وہ آپ کا کلیئر ہو جائے۔ یہی آپ کا مین پوائنٹ اور مین ٹاپک لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگوں سے سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اور لائک ضرور کر دیں تاکہ اسی طریقے کا ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچایا جائے گا۔ زبان کیا ہے؟ یہاں سب سے پوچھا مین ٹاپک یہی ہے، زبان کیا ہے؟ تو آپ یعنی لینگویج کیا ہے، بھاشا کیا ہے؟ تو آپ یہاں سے جو یہ ٹاپک ہے اس کو آپ دیکھیں گے، یہ مین پوائنٹ دیا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ زبان انسان کے جذبات، خیالات، احساسات، ضروریات کی ترسیل کا وسیلہ ہے، یعنی مادی اہم ہے۔ جذبات ہے، جو خیالات ہے، انسان جو بولنا چاہتا ہے، دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ کس کے ذریعہ ہوگا؟ وہ زبان کے ہی ذریعہ ہوتا ہے۔ سماجی تعلقات کی وجہ سے بچہ نقل کے ذریعہ زبان سیکھتا ہے۔ بچہ زبان کہاں سیکھتا ہے؟ سماجی تعلقات کی وجہ سے بچہ نقل کے ذریعہ زبان سیکھ لیتا ہے اپنے آپ۔ ماہر لسانیات زبان کو لغت اور قواعد کا امتزاج مانتے ہیں۔ یہ سب مین ٹاپک ہے، اس کو صحیح سے یاد رکھنا، مین پوائنٹ ہے یہ۔ زبان اور سماج کے مابین ایک ایسا رشتہ ہے جس کے ذریعہ نہ تو زبان کی ترقی ممکن ہے نہ ہی سماج کی ترقی۔ یعنی اگر بچہ اگر سماج میں نہیں رہے گا تو زبان سیکھنا اس کے لیے ناممکن ہوگا۔ اسی طریقے سے زبان اور سماج دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے، اس میں اگر رہتا ہے تو زبان خود بخود سیکھ لیتا ہے۔ زبان کا مطالعہ علم لسانیات کہلاتا ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اب یہاں سے ایک کوشچن یہ بنتا ہے، زبان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ زبان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 اشاروں کی زبان، نمبر 2 آوازوں کی زبان، نمبر 3 علامتوں کی زبان۔ اب اشاروں کی زبان کس کو کہا جاتا ہے؟ جب ہاتھ، پاؤں، سر، آنکھ، چہرے کے تاثرات کا استعمال کر کے اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو یہ اشاروں کی زبان کہلاتی ہے۔ یعنی جو بھی آپ زبان استعمال کرتے ہیں یا ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں، اگر آپ کی زبان پر بولی نہیں ہے تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ یا پاؤں یا چہرے کے تاثرات کے استعمال کر کے آپ دوسروں تک اپنی بات کو پہنچاتے ہیں۔ آوازوں کی زبان کا سیکھنا ایک اکتسابی عمل ہے، یعنی اکتسابی عمل ہے بچے کا اپنے ارد گرد پیش جن لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے وہ کوئی نہ کوئی زبان بولتے ہیں، بچہ انہیں نقل کر کے آوازوں کو دہرا کر زبان سیکھتا ہے، اس پر مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی آوازوں کی زبان اس کو کہا جاتا ہے۔ بچے اکتساب یعنی ارجن کرتا ہے، اپنے بڑوں کو ارد گرد ماحول میں رہ کر کے بچے نے زبان کو سیکھ لیتا ہے خود بخود، یعنی آوازوں کی زبان اس کو کہا جاتا ہے۔ علامتوں کی زبان، جب کسی آواز کو کسی مخصوص علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے تو تحریر کی شکل میں لے لیتی ہے، تحریر شکل میں زبان کی مستقل شکل ہے۔ علامتوں کی زبان اسی کو کہا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی بولتا ہے اور اس کو تحریری شکل میں لے لیا جاتا ہے، اس کو لکھ لیتا ہے، اسی کو تحریری شکل کہا جاتا ہے، یعنی علامتوں کی زبان کہا جاتا ہے۔ وہ مستقل شکل ہو گیا، اس میں نوٹ کر لیا گیا اور وہ اس میں مستقل زبان کے طور پر استعمال کر دیا گیا۔ بولی، اب بولی اور زبان میں کیا فرق ہے؟ اس میں چھوٹا سا فرق ہے، اس کو آپ دیکھیں گے۔ بولی اور زبان، بولی زبان کے مقابلے ایک چھوٹے علاقے یا مخصوص گروہ کے درمیان بولی جاتی ہے، اس کی کوئی تحریری شکل نہیں ہوتی ہے۔ بولی جو بولتے ہیں، کہیں اگر کوئی شخص کسی دوسرے علاقے سے ہیں تو وہاں کا بولی استعمال کرتے ہیں، وہاں کا زبان یعنی بولی استعمال کرتے ہیں، اس کا کوئی یعنی تحریری شکل موجود نہیں ہوتا ہے اور اس کی کوئی منظم شکل اور ضوابط نہیں ہوتے ہیں، یعنی اس کا کوئی طریقہ، اس کا گرامر، اس کے قواعد نہیں ہوتے ہیں، اس میں اکثر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ دوسری جانب زبان ایک وسیع نظریہ، اس کے معینہ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، عموماً مستقل فطرت ہوتی ہے۔ یعنی زبان جو ہے اس کی گرامر ہوتے ہیں، قواعد ہوتے ہیں، اس کے طریقے ہوتے ہیں، یہ ہے بولی اور زبان کا فرق۔
अब आपको हल करना है मादरी ज़बान। मादरी ज़बान किसको कहा जाता है और मेयारी ज़बान किसको कहा जाता है, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। मादरी ज़बान, मादरी ज़बान से मुराद बच्चा का घर आस पड़ोस में बोलने वाली ज़बान जिसे बच्चे फितरी तौर पर हासिल करता है। बच्चे जिसे इक्तिसाबी तौर यानी अर्जन से हासिल करता है उसी को कहा जाता है, यानी आस पड़ोस यानी मादरी ज़बान उसी को कहा जाता है। स्कूली तालीम से कबल यानी स्कूली तालीम से पहले बच्चे अपनी मादरी ज़बान की बारीकी और पेचीदगी और तश्कील को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और मुकम्मल लिसानी सलाहियत रखता है। यानी यहाँ कहा गया, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि स्कूल जाने से पहले बच्चा क्या कोरी सिलेक्ट होते या बच्चा कुछ नहीं जानता या लैंग्वेज जानता है, इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा जाता है जो हल करवा दिया जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। यानी स्कूली तालीम से कबल ही बच्चे अपनी मादरी ज़बान की बारीकियों यानी मुकम्मल तौर पर अपनी मादरी ज़बान पर अबूर हासिल कर लेते हैं स्कूल जाने से पहले ही। कई बार तो बच्चे स्कूल आने से कबल ही एक से ज़्यादा ज़बानें बोलना और समझना सीख लेते हैं। यानी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कई ज़बानें सीख लेते हैं, स्कूल भी नहीं गया, कॉलेज भी नहीं गया, लेकिन फिर भी ज़बान को सीख लेते हैं। माहिर लिसानियात ज़रिए तालीम प्राइमरी सतह पर मादरी ज़बान पे होने की हिमायत करते हैं। माहिर नफ्सियात जो मनोवैज्ञानिक है उसने कहा कि इब्तदाई यानी प्राथमिक क्लास में प्राथमिक शिक्षा में मादरी ज़बान पर फ़ौक़ियत हासिल किया गया, यानी मादरी ज़बान की हिमायत की गई, यानी मादरी ज़बान में तालीम दिया जाए। मादरी ज़बान की वो वसीला है जिसे कुछ अपने आप को बाहरी दुनिया से मरबूत कर पाता है और सीखने में फितरीपन आता है। मादरी ज़बान क्या है, वो वसीला है, वो माध्यम है जिससे कुछ अपने आप को बाहरी दुनिया से मरबूत करता है। बाहरी दुनिया से अब 1 अप्रैल 2009 से नाफिज़ अमल बच्चों का मुफ्त और लाज़मी तालीम का हक़ RTE 2009 के मुताबिक जहाँ तक मुमकिन हो बच्चे की इब्तदाई तालीम उसकी मादरी ज़बान में होनी चाहिए। बच्चे की शिक्षण किस में होनी चाहिए, मादरी ज़बान में होनी चाहिए, इब्तदाई यानी प्राथमिक शिक्षा में। हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 350 ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्टिकल है, 350 है, 340 है, बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम देने का हक़ दिया है, वो आर्टिकल है 350। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और वो कौमी दरसियात का हक़ NCF 2005 का ख्याल ये है कि बच्चे अपने इल्म की तश्कील यानी शिक्षण की तश्कील खुद करते हैं तभी हकीकत बन सकता है जब हम बच्चे को मादरी ज़बान में इजहार और तफक्कुर करने की आज़ादी दें। यानी बच्चे को मादरी ज़बान में बोलने की आज़ादी दें तभी बच्चे खुद ब खुद सीख सकता है और इजहार कर सकता है। अब यहाँ आता है मेयारी ज़बान। मेयारी ज़बान, आप मादरी ज़बान पढ़ ली, अब मेयारी ज़बान यानी मादरी ज़बान में क्या कहा गया, मादरी ज़बान से मुराद बच्चे का घर आस पड़ोस यहाँ हो गया, कई बार ये तो आपका हो गया। अब मेयारी ज़बान आप देखेंगे। मेयारी ज़बान उस ज़बान को कहते हैं किसी ज़बान की मुख्तलिफ बोलियों में से एक होती है और औला इक़्तिदार के हैं, मंजर में काबिल कबूल मानी जाती है। मंजरे उस ज़बान की दूसरी शक्ल को उसकी बोलियां कहा जाता है। मेयारी ज़बान को उसकी दूसरी शक्ल में बोलियां भी कहा जाता है। ये है किसी ज़बान की मुख्तलिफ बोलियों में से एक होती, यानी किसी लैंग्वेज किसी भाषा की मुख्तलिफ बोलियों में से मेयारी ज़बान एक होती है और आला इक़्तिदार के हैं। अब जहाँ से क्वेश्चन बनता है यहाँ आप देख लेंगे। ज़बान की हुसूलियाबी एक ऐसा अमल है, यानी अर्जन, भाषा अर्जन एक ऐसा अमल है जिसके तहत आस पास के माहौल, वालिदैन और बड़ों से देख कर ज़बान सीखता है। ज़बान की हुसूलियाबी क्या है, एक ऐसा अमल है जिसके तहत वालिदैन बड़ों यानी बड़ों की देख करके भाषा सीख लेते हैं। ये है आपका, और ये फितरी अमल है। ये अमल पैदाइश के बाद से शुरू हो जाता है। कौन, इक्तिसाबी अमल। और 4 साल की उम्र तक बच्चा मादरी ज़बान का इक्तिसाब कर लेता है, हासिल कर लेता है। इस तरह ज़बान के हुसूल का नज़रिया मादरी ज़बान से जुड़ा हुआ है जिसमें नीम शऊरी अमल से कवायद के तय लाइल्मी रखते हैं। यानी बच्चे खुद ब खुद मादरी ज़बान को सीख लेता है और कवायद से वो लाइल्मी रखते हैं, वो कवायद के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, फितरी तौर पर ज़बान सीख लेता है। ज़बान की आमूजिश
मादरी ज़बान की आमूजिश यानी भाषा अधिगम। मादरी ज़बान सीखने के अलावा किसी दीगर ज़बान के सीखने से ताल्लुक़ रखता है। यानी ज़बान की आमूजिश क्या है? मादरी ज़बान के सीखने के अलावा किसी दूसरी ज़बान सीखने के ताल्लुक़ रखता है। हिंदुस्तानी तनाजुर में अंग्रेज़ी ज़बान सीखा जाता है, यानी मादरी ज़बान बच्चे खुद जानता है और यानी मादरी दूसरी ज़बान सीखता है, जिसको कहा जाता है इंग्लिश या किसी और ज़बान हो जाए। ज़बान की आमूजिश में बाकायदगी पाई जाती है। तालिब इल्म शऊरी तौर पर क़वाइद के उसूलों की पाबंदी करता है, यानी क़वाइद को भी जानता है, नहवी साख्त पर अमल करता है, बार बार मश्क से अपनी ज़बान पर दस्तरस हासिल करते ही कोशिश करते हैं। यानी ज़बान की आमूजिश क्या है? बच्चे उस पर मुकम्मल तौर पर मेहनत करके ग्रामर सीखता है, क़वाइद के उसूल सीखता है, उसके बाद ज़बान अंग्रेज़ी ज़बान या किसी अरबी ज़बान किसी और ज़बान को बच्चे सीखते हैं, जिसकी ज़बान की आमूजिश इसी को कहा गया। इससे आगे यानी भाषा अधिगम और अर्जन में कंपेयर किया जाएगा, बराबरी किया जाएगा और पूछा जाएगा जहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है 1 से 2 नंबर आपका क्वेश्चन वहीं से आपको देखने को मिलेगा। आप यकीन मानिए कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अब इसका पार्ट 2 यानी ज़बान की आमूजिश और हुसूलियाबी, यानी ज़बान की हुसूलियाबी और आमूजिश की पार्ट 2 आने वाला है, उसको आप ज़रूर देखेंगे। वो एकदम जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वहीं से आपको बताया जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जैसे ही वो वीडियो डाला जाएगा आप तक वो वीडियो पहुँच जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।